শান্তি শান্তি শান্তি। ভারতীয় সংস্কৃতি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট বেলুড়ে সকলকে স্বাগত। বিএসএসইআই বেলুড় সর্বদা ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে নানান অ্যাক্টিভিটি করে থাকে এবং 2017 সালে এনটিএ নেটের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রশিক্ষণের পর যখন সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে বিএসএসইআই প্রতি বছর যেখানে আগের বছরের সাফল্যের সংখ্যাকে টপকে যাচ্ছে, নিজের চ্যালেঞ্জকে নিজে নিয়ে ফেলছে বিএসএসইআই, ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যার্থে বিএসএসইআই এনেছিল নতুন একটি প্ল্যাটফর্ম, সার্চ টু রিসার্চ। মূলত এই সার্চ টু রিসার্চে আমরা শেখাই একজন ছাত্র থেকে ঠিক কিভাবে গবেষক হয়ে উঠবে। আর যখনই আসে গবেষক হয়ে ওঠার প্রশ্ন, ঠিক তখন ছাত্রছাত্রীদের মাথায় যে প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করে, আমি কি নিয়ে গবেষণা করব, আমার গবেষণার বিষয়বস্তু কি হবে, কিভাবে গবেষণা করব, তার পদ্ধতি কি হবে, প্রথম পদক্ষেপ কি হবে। স্বপ্নের নেট পাস তো হলো, এখন সঠিক গবেষক তৈরি করার দায়িত্ব নিয়েছে বিএসএসইআই এবং সেই নতুন গবেষকদের গবেষণার নতুন পন্থা জানানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় নানান অধ্যাপকদের শরণাপন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তারাও আমাদের সেই আমন্ত্রণ রক্ষার্থে ছাত্রছাত্রীদেরকে দিশা দেখানোর জন্য চলে এসছেন আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে। তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে ঠিক সেরকমই আরো একটি সন্ধ্যা, আরো একটি পর্ব নিয়ে আমরা চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আজকে আমাদের পর্বের প্রধান বিষয় হলো বেদ। আজকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির দিকে যদি তাকাই, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্পেশালাইজেশন বেদ, বহু ছাত্রছাত্রী পড়াশুনো করছে। কিন্তু যখনই রিসার্চের কথা আসে তখনই প্রশ্ন চিহ্ন জাগে প্রত্যেকের মুখে, বেদ নিয়ে পুনরায় কি কাজ হতে পারে? সেই তো চর্বিত চর্বণ হবে, নাকি সত্যিই বেদ নিয়ে নতুন কিছু করা যেতে পারে? শুধু বেদ স্পেশাল যারা তাদের নয়, বেদ, দর্শন, বেদান্ত তথা সংস্কৃতের ছাত্রছাত্রীরা যারা গবেষণার টপিক খুঁজে পাচ্ছ না, তাদের নতুন দিশা দেখানোর আরেক নাম সার্চ টু রিসার্চ। এবং সেই সার্চ টু রিসার্চে আজকে স্কোপ অফ রিসার্চ ইন বেদা এই বিষয় নিয়ে আমরা চলে এসেছি এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত। এবং আজকের বক্তার সঙ্গে পরিচয় করাবেন, স্যারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আজকে অনুষ্ঠানের সূচনা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের সকলের প্রিয় এবং পরিচিত অনন্ত মহাশয়কে। অনন্ত। হ্যাঁ অমিতা, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো আপাতত এখন যে অবস্থানটায় আছি, মানে ক্যামেরাটা অন করতে পারবো না, কেননা আমার ঘর থেকে, মানে এই লোকেশন থেকে যদি ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন একসাথে ওপেন করি তাহলে হেজি হয়ে যায় বদ্ধ জিনিসটা। আমি ওই জন্য সকল দর্শক বৃন্দ যারা এখানে উপস্থিত আছেন প্রত্যেকে এই বিষয়ের জন্য একটুখানি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। तो सभी को सर्च टू रिसर्च बीएसएसएआई की ओर एक सत्र में हम स्वागत करते हैं। आज यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं वेद के विषय में आगे चलकर हम लोग क्या क्या शोध कार्य संपादित कर पाएंगे इस विषय में एक रूपरेखा प्राप्त करने के लिए। हम सबके साथ आज उपस्थित हैं श्रद्धेय अध्यापक प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी। वे अपने नाम, महिमा और विद्वत्ता की महिमा से ही पूरे उत्तर भारत तथा संपूर्ण भारतवर्ष में परिचित है, लेकिन फिर भी औपचारिक स्तर में आज यहाँ पर स्वागत भाषण के माध्यम से मैं उनके विषय में कुछ बोलना चाहूंगा। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से वे अपनी शास्त्री कक्षा समाप्त किए हैं। गुरुकुल कांग्रे विश्वविद्यालय से विद्यालंकार रूप उपाधि को हासिल किए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय को लेकर गोल्ड मेडल लाभ के साथ साथ अपना स्नातकोत्तर डिग्री को हासिल किए हैं। उनके और एक एमए डिग्री है वैदिक साहित्य के ऊपर, और साहित्य में भी आचार्य उपाधि को लाभ किए हैं। इन सभी में महोदय गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं। संस्कृत व्याकरण के ऊपर उनके पीएचडी और मीमांसा शास्त्र के ऊपर उनके डीलिट डिग्री है। उन्हें कुल मिलाकर 8 विश्वविद्यालय से विभिन्न क्षेत्रों में अपने महान विद्वत्ता और श्रेष्ठ छात्र होने के नाते 8 गोल्ड मेडल हासिल हुआ है।
अपना अध्यापना जीवन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शुरू किए थे। बाद में पंजाब विश्वविद्यालय में योगदान किए और वहीं पर सन 2000 से प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं सर। पंजाब विश्वविद्यालय के दयानंद वैदिक चेयर के चेयरपर्सन का पद भी उन्हें प्राप्त हुआ है। पंजाब विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के दूरस्थ शिक्षा माध्यम परिचालन समिति का समन्वयक और वीए व एमए पाठ्यक्रम के आह्वायक समन्वयक रूप काम में भी सर का योगदान है। कुल मिलाकर विभिन्न विश्वविद्यालय के 15 जगह में शोध तथा पाठ्यक्रम निर्वाचन समिति के सदस्य पद में भी उनका नाम है। उनके 2 स्वरचित काव्य ग्रंथ के ऊपर शोध कार्य हुआ है। उन 2 काव्य ग्रंथ का नाम यथाक्रम देव प्रशस्ति काव्यम और पद्मचंद्रोदयम। इससे अतिरिक्त भी उनके 4 काव्य ग्रंथ है। उनके विभिन्न शास्त्र के ऊपर 8 स्वरचित ग्रंथ है। 48 विभिन्न विषय के ऊपर, विशेष रूप से वेद और स्मृति शास्त्र के ऊपर, विवेकानंद साहित्य के ऊपर, महाभारत के ऊपर, दयानंद सरस्वती के विषय में इत्यादि ढेर सारे विषयों में उनका शोध पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित रचना है। इससे अतिरिक्त बहुत सारे जगह के सत्रों में भी आमंत्रित वक्ता के रूप में उनका योगदान रहा है। बाणभट्ट सम्मान, वेदव्यास सम्मान, सर्वोत्कृष्ट काव्यकृति सम्मान, संस्कृत सेवा सम्मान, वैदिक विद्युत पुरस्कार इत्यादि बहुत सारे सम्मान और उपाधियों से समय समय पर वे सम्मानित हुए हैं। आज आपको प्राप्त करके VACCI सर्च टू रिसर्च सच में ही अपने आप को धन्य और कृतकृत्य मान रहा है। आपसे विनम्र अनुरोध है, वेद के विषय में और वेद से जुड़े हुए आगामी संभावित शोध क्षेत्र के विषय में हम सबको एक सही मार्ग प्रदर्शन कराएं और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है अंत तक जुड़े रहें, नए नए शोध क्षेत्र के विषयों को जानकर अपने आप को धन्य करें। नमस्कार। अमिता। मैं सर को अनुरोध करता हूँ, सर कृपया आपका आज का जो अनुष्ठान है ये शुरू कीजिए। धन्यवादः सर्वेषां मित्राणां। क्षन्तव्यहं बङ्गभाषां न जानामि, अतः किञ्चित् हिन्द्यां किञ्चित् संस्कृते वा वक्ष्यामि। सम्मान्य अस्य कार्यक्रमस्य संचालक महोदय अमित डे वर्य, श्रीमान अनंत मुखर्जी महोदय, अस्मिन् सदसि विद्यमाना अन्य विद्वांसः, किंचित वक्ष्यामि वेद विषयम् आश्रित्य। यद्यपि भवन्तः सर्वे विद्वांसः सन्ति, पुनरपि पुनः पुनः कथनेन संस्कारः दृढो भवति। अस्मादेव कारणात् काचित् विवक्षा वर्तते। मैं जानता हूं कि आपको शायद कुछ कठिनाई हो सकती है मेरी बात समझने में, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि आप किन किन भाषाओं के विद्वान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति की जो अंतस चेतना होती है उससे हम एक दूसरे को अपनी बात पहुंचा ही देते हैं। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बड़े प्रयास के करते हुए आप लोगों ने ये आयोजन किए हैं और भारतीय साहित्य को झंझोड़ के देखा है कि कहाँ कहाँ कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। मुझे याद है जब मैं वैदिक साहित्य पढ़ता हूँ, विदेशी विद्वानों ने मैक्स मुलर को भी एक मानना पड़ा कि कुछ भी कहो पर भारत के पास एक ऐसी भाषा है, कुछ ऐसा साहित्य है जिसके आधार पे आप इसे विश्व के मूर्धन्य स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि विद्वानों का ये मानना है कि विश्व का जितना भी साहित्य है, सभी लोग अपने साहित्य में चर्चा किया करते हैं और अच्छा साहित्य वही होता है जो इस बात पर जोर देते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सुख कैसे बढ़े, मनुष्य मनुष्य के साथ कैसे जुड़े। लेकिन वैदिक साहित्य, वेद इससे भी आगे बढ़ गया है और वेद ने
पहली बार ये स्थापना की, वो केवल किसी देश की बात नहीं करता बल्कि पूरे ब्रह्मांड शांति की बात करते हैं। और आपको मंत्र याद होगा, द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, द्युलोक की शांति की बात की, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, सारे लोगों की बात की। इससे पता लगता है कि ये साहित्य कि देश की सीमाओं तक नहीं बंधा, बल्कि ये ब्रह्मांड का साहित्य है। ब्रह्मांड के अंदर शांति की प्रार्थना करने वाले ऐसे शायद बहुत कम संदर्भ मिलेंगे, लेकिन वैदिक साहित्य इस प्रकार के संदर्भों से भरा पड़ा है। इसलिए जब हम विश्व शांति और ब्रह्मांड शांति की बात करते हैं तो सबसे पहला स्थान वेदों को प्राप्त होता है। किसी भी साहित्य को लेकर विवाद हो सकता है कि अमुक साहित्य में अमुक कालखंड की बात हुई, फला साहित्य में देश की बात हुई, स्थान की बात हुई, पर वैदिक साहित्य ऐसा है जो देश की और काल की सीमाओं से परे है। इसलिए लाखों करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले जितना यह साहित्य प्रासंगिक था, आज भी यह साहित्य उतना ही प्रासंगिक है। और यदि ऐसा साहित्य प्रासंगिक है तो उस पर अनुसंधान होना ही चाहिए। आधुनिक जो हमारे अनुसंधाता हैं वे इस बात पर विचार किया करते हैं कि क्या वैदिक साहित्य में विज्ञान परक अनुसंधान हो सकता है, क्या बाकी संस्कृत वाङ्मय में वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है। इसका उत्तर केवल ये है कि आखिर विज्ञान विषय में होता है या उसके अनुसंधान के तरीके में होता है। क्योंकि सामान्यतः लोग ये मानते हैं जब विज्ञान का अध्ययन करेंगे, विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो केमिस्ट्री में हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, बॉटनी में हो सकता है और दूसरे साहित्यों में हो सकता है। संस्कृत साहित्य में विज्ञान का अध्ययन कैसे हो सकता है? इसमें हम एक ही बात जानते हैं, वैज्ञानिक स्टडी, वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो विषय पर आधारित नहीं होती, वो उसके करने के तरीके पर होती है। यदि आप केमिस्ट्री में अध्ययन करें और केमिस्ट्री में या फिजिक्स में अध्ययन करते समय हम उसके तरीके भूल जाएं तो वो स्टडी भी बेकार हो जाएगी। इसी प्रकार से क्योंकि उसके जो तरीका है, उसका जो ढंग है, उसका जो मार्ग है, उस मार्ग में विज्ञान होता है। इसलिए संस्कृत का अध्ययन भी जब हम ठीक तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तो भाषा भी विज्ञान बन जाती है, साहित्य भी विज्ञान बन जाता है। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन का हमारे यहाँ अर्थ केवल जो मॉडर्न साइंस है उसको लेकर के नहीं है, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है हम जिस तरीके से अध्ययन करते हैं उस तरीके को हम विज्ञान बोलते हैं। अब यदि वैदिक साहित्य की बात करें तो आप जानते हैं इतना पुराना साहित्य और इस पुराने साहित्य में इतना विस्तार है, इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, आपको क्या बताएं। यदि मैं पंजाब की बात करूं तो आप लोगों ने निश्चित रूप से विश्वेश्वरन विश्व बंधु संस्थान का नाम जरूर सुना होगा, जो होशियारपुर में है। वहां बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे रखे हैं जिस पर अनुसंधान की बड़ी संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, जब भारत का विभाजन हुआ, आधा पंजाब पाकिस्तान में रह गया, तो लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय को जब भारत में लाया गया तो आज वो यहाँ चंडीगढ़ के अंदर डीएवी कॉलेज है, उसके अंदर वो विस्तृत साहित्य विद्यमान है। उस पुस्तकालय का नाम है लालचंद लाइब्रेरी, लालचंद पुस्तकालय। उस लालचंद पुस्तकालय में अनेक हस्तलिखित ग्रंथ विद्यमान है, बहुत सारा दुर्लभ साहित्य विद्यमान है। उस दुर्लभ साहित्य में
अध्ययन की अनेक संभावनाएं विद्यमान है। और यदि हम पारंपरिक वैदिक साहित्य की बात करें तो आप देखिएगा, गृह सूत्र को देखिएगा, गृह सूत्रों में उनके अर्थों को देखें। जब अर्थों को देखेंगे हम जानते हैं कि ब्राह्मण साहित्य और गृह सूत्र, इनके बिना वेद का अर्थ समझना बड़ा असंभव हो जाता है। एक उदाहरण देखिएगा, कपिर बभस्ति तेजनम, एक वाक्य मिला हमें वेद में, अथर्ववेद में है ये। और जब हमने सामान्य संस्कृत की डिक्शनरी देखी तो हमें पता लगा कि कपि का अर्थ वानर होता है, और जब वानर का अर्थ किया और तेजनम का अर्थ सूर्य होता है। और ये पढ़ते समय हमने संभावना की तलाशनी शुरू की, तो साधारण तौर पर हमने जाते जाते अर्थ कर लिया कि कपि का जब वानर कर लिया, हमने उसका संबंध भगवान हनुमान से जोड़ दिया। और एक कथा प्रसिद्ध है, हालांकि वो कथा समझाने के लिए है कि हनुमान ने सूर्य का, उनको निगल गए थे। और जब ये बात साहित्य में आई, क्यों एक ही बात का साहित्य के अंदर दूसरा रूप होता है, लेकिन दार्शनिक भाषा में दूसरा रूप होता है। जब उस पर तत्व विचार किया, वैदिक आचार्यों ने विचार किया, तो पता लगा कि नहीं, यहां कुछ घटना कुछ और है। मैं पूरा मंत्र आपको सुना देता हूं, अथर्ववेद का 6ठे मंडल का सूक्त, 49 सूक्त है, पहला मंत्र है उसका, नहिते अग्ने तन्वः क्रूरम आनंश मर्त्य है, कपिर बभस्ति तेजनम स्वम जरायुम गौरिव। अब सामान्य जब डिक्शनरी देखेंगे तो हमें वेद का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वेद का जो अपना डिक्शनरी है, अपना जो शब्दकोश है, वह तो निघंटु है। और जब निघंटु देखेंगे और पूरा ब्राह्मण साहित्य देखेंगे तो निरुक्त में पढ़ते समय में पता लगा, कपि का अर्थ होता है लोक लोकांतरों को कंपा देने वाला, लोक लोकांतरों को चेतना देने वाला। कौन? परमेश्वर। और जब परमेश्वर अर्थ हो गया तो पता लगा कपिर बभस्ति तेजनम का अर्थ होता है जो परमेश्वर, जिसके सामर्थ्य में सारा ब्रह्मांड है, या उस विज्ञान की बात हो रही थी। लेकिन यही जब साहित्य के अंदर आ गया तो साहित्य के अंदर आकर के हमने इसका संबंध कपि का अर्थ वानर कर दिया। इस तरह से अर्थ का परिवर्तन होता जाता है। पर जब वैदिक साहित्य पढ़ेंगे और पूरे साहित्य को जोड़ेंगे, फिर पता चलेगा कि साहित्य के अंदर कैसे कैसे वो साहित्य आगे आता चला गया। एक और उदाहरण देखिएगा, अब यहां तो मूल अर्थ तो ये था, कपिर बभस्ति तेजनम, जिस परमेश्वर के पूरे सामर्थ्य में सारा ब्रह्मांड है, ऐसे हम ईश्वर की उपासना करें। लेकिन शब्दों का अर्थ जब नहीं मालूम होगा तो हम वेद के मंत्रों का अर्थ भी कुछ दूसरी दिशा में ले जाएंगे। इस तरह से जो जितना वैदिक साहित्य है, जितने वैदिक सूक्त हैं, उसमें एक समीक्षात्मक दृष्टि से हमें ये अध्ययन करना पड़ेगा। आप जानते हैं वैदिक साहित्य में च्यवन ऋषि की चर्चा हुई और च्यवन के बारे में यो कहा गया, जब लोक के अंदर वो च्यवन आए, ये शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी आए, मूलतः तो संभवतः ये ऋग्वेद में थे। और एक प्रसंग वहां पर ये आया कि च्यवन कौन। अब सामान्यतः जब हम वैदिक साहित्य की गंभीरता में नहीं जाएंगे तो हम क्या अर्थ करेंगे। वहां वर्णन ये आता है कि च्यवन एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने ऐसा अनुसंधान किया था कि उन्होंने कुछ ऐसा प्राश तैयार किया। और आप जानते हैं हम सब लोग सर्दियों के अंदर शरद ऋतु में च्यवन प्राश खाते हैं। और साहित्य में चर्चा हुई कि च्यवन ऋषि ऐसे थे
जिन्होंने कोई ऐसा अनुसंधान किया था, अनुसंधान करने के बाद उन्होंने स्वयं वो खाया, बड़े वृद्ध थे वो, और वृद्ध व्यक्ति ने जब वो च्यवन का सेवन, उस प्राश का सेवन किया, वो युवा हो गए। अभी बात सुनने में बड़ी अजीबोगरीब लगती है और कई बार संदेह भी पैदा होता है और हम प्रश्न भी ज्यादा करते हैं, लेकिन यदि इसके मूल तत्व में जाएंगे कि च्यवन का अर्थ क्या, क्योंकि च्यवन के बारे में या वैदिक साहित्य के बारे में निरुक्तकार और बाद के आचार्यों ने हमें एक दृष्टि दी है। दृष्टि यह है कि वैदिक साहित्य के जितने शब्द हैं वो यौगिक प्रधान है, उनका एक यौगिक अर्थ लेना पड़ेगा। जब यौगिक अर्थ लेंगे तब उससे एक दूसरा अर्थ निकलेगा। जब हम रूढ़िग्रस्त अर्थ लेंगे उसका अर्थ कुछ अन्य निकलेगा, और जहां बढ़िया अर्थ निकले उस अर्थ को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, वो अर्थ चाहे किसी भी आचार्य का हो। अब च्यवन को देखिएगा, च्यवन की व्याख्या करते समय हमारे यहाँ व्याख्याकारों ने कहा कि च्यू धातु से शब्द बना, च्यू च्यवने, जिसका एक तरह से पतन हो जाता है। और आप देखेंगे, क्योंकि यास्काचार्य मानते हैं कि आख्यान का प्रयोजन क्या, आख्यान का प्रयोजन यह है कि आचार्य, कोई ऋषि जब अपनी बात को कहना चाहता है और उस बात को बड़ी अलंकारिक शैली में कहना चाहता है, उसको तरीका उसका यह है, उसकी शैली यह है कि वो आख्यान प्रस्तुत कर देता है। लेकिन पश्चिम के लोगों ने और बहुत सारे हमारे अपने आचार्यों ने भी, बाद के आचार्यों ने आख्यान को एक इतिहास मान लिया, पर यह वैसा इतिहास नहीं है। आप निरुक्तकार के पास जाइएगा तो पता चलेगा कि आख्यान किसी विषय के अंदर प्रीति पैदा करने के लिए होता है। जब हम किसी को मनोरंजक शैली में कहते हैं तो आचार्य वहां आख्यान का प्रयोग करता है। इसलिए वैदिक आख्यानों को लेकर के अनुसंधान की बड़ी संभावनाएं हैं, और उन आख्यानों की व्याख्या के लिए हमें अपने ब्राह्मण साहित्य में जाना पड़ेगा, निरुक्तकार के पास जाना पड़ेगा। अब यदि मैं च्यवन की बात करूं तो हम क्या समझेंगे? मान लीजिए आपने वैदिक साहित्य पढ़ा, वैदिक सूक्त पढ़ा, और वैदिक सूक्त पढ़ते हुए पता चला कि कोई ऐसे ऋषि थे जिनको वरदान प्राप्त हुआ, क्योंकि वर्णन आता है कि उन्होंने उपासना की तो देवता प्रकट हुए, और देवताओं ने यूं कहा कि आप तो अश्विनी देवताओं की उपासना करो। जब प्रसन्न हुए, जब देव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के, क्योंकि एक अलंकारिक कथा है हमारे यहाँ कि देवता वरदान प्रदान करते हैं, श्राप प्रदान करते हैं, लेकिन इनका तात्पर्य कुछ और है। तात्पर्य को समझने के लिए हमें उसकी गहनता में जाना पड़ेगा। वह एक शैली है। और आप देखिएगा, च्यवन को यह कहा गया कि आप अश्विनी देवताओं की उपासना कीजिए, और उन्होंने अश्विनी देवताओं की उपासना शुरू की, और यूं कहा कि जब अश्विनी देवता यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको यौवन प्राप्त हो जाएगा। और यौवन प्राप्त करने के लिए उनको एक तालाब बताया गया कि उस तालाब में आप स्नान करेंगे। उस तालाब में स्नान करके निकले तो बूढ़े च्यवन ऋषि एकदम युवा होकर के निकले, और यह भी वरदान मिला कि आपकी फिर अनेक पत्नियां होंगी। अब ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, और ये श्रद्धा के कारण हम बेशक स्वीकार कर लें, लेकिन जब तत्वार्थ की दृष्टि से देखेंगे, तात्विक अध्ययन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शक तो पैदा होता है, संदेह पैदा होता है कि ऐसे कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति किसी सरोवर में डुबकी लगाए और बाहर
महोदय भवतः माइक म्यूट जातमस्ति, कृपया अनम्यूट। अस्तु अस्तु। सम्प्रति म्यूट जातम् अथवा प्रारम्भतः म्यूट वर्तते? श्रूयते श्रूयते महोदय। अस्तु, ये म्यूट अभी हुआ कि पहले से म्यूट था? नास्ति, एवं नास्ति, इदानीमेव जातमस्ति। अस्तु अस्तु, धन्यवाद। मैं आपको वैदिक च्यवन ऋषि की चर्चा सुना रहा था और च्यवन ऋषि के बारे में ये बता रहा था कि वैदिक आख्यानों के बिना ऐसे संदर्भों की व्याख्या आप नहीं कर सकते। और च्यवन के बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि शरद ऋतु में च्यवन प्राश खाने का सबको बड़ा अच्छा लगता है। और हम ये मान के चलते हैं, हमने सुना है परंपरा से कि कोई च्यवन ऋषि थे, उन्होंने ये तैयार किया था, कोई उनका अनुसंधान था और खा करके युवा हो गए। और ये पहला जो संदर्भ मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के अंदर ये चर्चा हुई और ऋग्वेद में ये प्रसंग आया कि च्यवन युवा कैसे हुए। उनको कहा गया, देवताओं ने कहा कि आप अश्विनी देवताओं की उपासना कीजिएगा और जब अश्विनी देवताओं की उपासना करोगे तो आप युवा हो जाएंगे और युवा होकर के इतने युवा हो जाएंगे कि आपके अनेक पत्नियां होंगी। अब ये संदर्भ हमें मस्तिष्क में नहीं बैठता, भले ही कोई श्रद्धा के कारण मान ले, पर ऐसा लगता है कि ये क्या क्या इनका तात्पर्य हो सकता है, ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि बहुत बुजुर्ग आदमी अचानक युवा हो जाए, ये कैसे संभव है? लेकिन जब ब्राह्मण साहित्य पढ़ते हैं तब हमें पता लगा च्यू का अर्थ होता है च्यवने, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पतित हो गया है। पतित मतलब मान लीजिए एक उस साहित्य को छोड़ करके हम लोक पर में आते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सारी उम्र बीत गई व्यसनों में, अनध्याय में, उल्टे सीधे कार्यों में, उसके पास कोई अवसर है या नहीं ठीक मार्ग पर चलने के लिए। तो वैदिक मार्ग में ये कहता है कि उसके पास भी अवसर है, और अवसर क्या है? अश्विनी देवताओं की उपासना करो। और आप जानते हैं अश्विनी देवता वैदिक साहित्य में द्विवचनांत है, अश्विनौ। और जब ब्राह्मण साहित्य में हमने इसको देखा कि अश्विनी देवता कौन है, तो पता लगा अश्विनी देवता दिन और रात, अहोरात्र, दिन और रात को वहां पर अश्विनी देवता कहा गया। इसका अर्थ क्या निकला? कोई व्यक्ति जो बहुत समय बर्बाद कर चुका है पर किसी भी उम्र में निराश ना हो, कोई 80 वर्ष का भी हो गया है और वो यह निराश ना हो कि अब तो मेरे पास जीवन बहुत कम बचा है, मैं क्या करूं। युवा बनने का उसके पास एक अवसर हमेशा रहता है। और युवा बनने का कौन सा अवसर? अश्विनी देवताओं की उपासना। अश्विनी देवता कौन? दिन और रात। और दिन और रात जो प्रतीक है ये काल के प्रतीक है, अर्थात समय जितना भी गुजर जाए, एक बार जिसको चेतना आ गई और जिसने समय की उपासना आरंभ कर दी, जिसने समय के मूल्य को समझ लिया, समझ लीजिए वो उसी दिन से युवा होने लग जाएगा। और यहाँ जो विवाह की बात की गई, वो विवाह पत्नियों की जो बात की गई, पत्नी का अर्थ जानते क्या है? पत्नी का अर्थ दयानंद सरस्वती अपने साहित्य में अर्थ करते हैं, मनुष्य की जो क्रिया शक्ति होती है वह है पत्नी। क्रिया शक्ति मतलब आज से मैंने अध्ययन शुरू कर दिया, समय बर्बादी बंद कर दी, ये क्रियात्मक शक्ति आने लगेगी। और क्रियात्मकता क्या होगी? फिर व्यक्ति विद्वान भी बनने लगेगा, व्यक्ति क्रियाशील हो जाएगा, विद्या के अंदर श्री आने लग जाएगी, आत्मविश्वास पैदा होने लग जाएगा। इस तरह से ये जब लोक में अर्थ करेंगे तो पता लगेगा, अरे च्यवन केवल भूतकाल का कोई ऋषि नहीं है, बल्कि च्यवन वह है जो किसी भी समय में, किसी भी अवस्था में अपने आप को संभाल ले, और जिस दिन वो जागृत हो जाएगा, समय की उपासना करने लग जाएगा, वह समझो च्यवन हो जाएगा। इसलिए
जब हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करें तो उसके अंदर ब्राह्मण साहित्य की और जो हमारा कल्प साहित्य है उसके अंदर आज भी अनेक संभावनाएं बनी हुई है। एक और उदाहरण मैं आपको रखता हूं, पुंसवनम संस्कार है। पुंसवन संस्कार, हमारे बहुत से विदेशी विद्वान इस बात पर जोर देते रहे कि प्राचीन भारत में पुत्र प्राप्ति की प्रार्थनाएं की गई हैं। अब ये बात सुन करके आधुनिक विद्वान तो यूं कहेंगे कि एक तरफ तो वैदिक आचार्य यूं कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं, बराबर है, लेकिन पूरे वैदिक वाङ्मय में एक भी संस्कार पुत्री प्राप्ति के लिए नहीं है, जबकि पुंसवन संस्कार विद्यमान है। अब इसका समाधान क्या खोजेंगे? इसका समाधान आपको केवल प्राचीन वाङ्मय में मिलेगा, ब्राह्मण साहित्य में मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुंसवन का अर्थ पुत्र प्राप्ति है ही नहीं। पुंस अवन का अर्थ है, अवन कहते रक्षा, और अपने पौरुष की रक्षा करने के लिए। पौरुष किसका? आप यदि संस्कार विधि देखेंगे तो संस्कार विधि के अंदर एक दयानंद सरस्वती ने एक अर्थ प्रस्तुत किया है ब्राह्मण साहित्य के आधार पर। वो लिखते हैं कि जब माता पिता को यह निश्चय हो गया कि गर्भ स्थापित हो गया है, तो गर्भ स्थापित होने के जो 3-4 महीने हैं उसके बाद एक संस्कार किया जाएगा। संस्कार ये होगा कि माता के गर्भ में पलने वाला बच्चा अब पूरा तरह से स्वस्थ रहेगा। और वहां ये बात नहीं है कि पुत्र होगा तो स्वस्थ रहेगा। गर्भ में पलने वाला बच्चा, ये कोई भी नहीं जानता कि स्त्री है कि पुरुष है, बेटा है कि बेटी है, उसकी सुरक्षा के उपाय करेंगे। और दूसरा, माता पिता अपने पौरुष की रक्षा करने लग जाएंगे, विषय वासनाओं से दूर हो जाएंगे, ताकि माता के गर्भ में पलने वाले बच्चे के भीतर एक स्वाभाविक रूप से संस्कार पर आने लग जाए। अब जब यह अर्थ करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये संस्कार जितने प्राचीन युग में प्रासंगिक थे, आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और ये प्रासंगिक केवल किसी एक काल के लिए नहीं है, केवल एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। इस तरह से हमें इनका अर्थ करना पड़ेगा। यदि मैं गृह सूत्रों की बात करूं, और आप जानते हैं गृह सूत्रों में अन्नप्राशन संस्कार आता है। यूं कहा गया कि षष्ठे मासी अन्नप्राशनम, षष्ठ महीने में अन्नप्राशन संस्कार किया जाए। लेकिन इस संस्कार में इसकी व्याख्या गृह सूत्रों को समझे बिना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 6 महीने का बच्चा है और वहां पर कुछ प्रसंग ऐसे आए कि यदि पेरेंट्स अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो अमुक अमुक पक्षी का, अमुक अमुक पशु का मांस खिलाएं, ज्यादा विद्वान बनाना चाहते हैं ये मांस खिलाएं, ज्यादा बलवान बनाना चाहते हैं ये मांस खिलाएं। अब समस्या ये है, मेडिकल साइंस के लोग यूं कहेंगे, डॉक्टर्स यूं कहेंगे कि बिल्कुल अव्यावहारिक बात है। 6 महीने का बच्चा फला फला मांस कैसे खा सकता है? और आपके सामने प्रश्न पैदा होगा। जब प्रश्न पैदा होगा तो हम भी एक बार तो सोचना पड़ेगा। लेकिन इन प्रश्नों का समाधान आपको गृह सूत्रों में मिलेगा, क्योंकि वहीं जहां मांस की बात का उल्लेख हुआ, वहां मांस शब्द का अर्थ क्या है वो देखिएगा। वेद में शतपथ ब्राह्मण का मैं रेफरेंस दे रहा हूं। जब हम गृह सूत्र पर रिसर्च करेंगे और गृह सूत्रों पर रिसर्च करते हुए संस्कारों पर रिसर्च करेंगे और गृह सूत्रों की शरण में जाएंगे
तो हमें एक प्रसंग मिलेगा 7.5.2 में, वो है अन्नम उपशोर मासम। कितने ही प्रसंगों में वैदिक साहित्य में अन्न को भी मांस कहा गया। इसलिए मांस का अर्थ केवल मांस नहीं है, वो प्रसंग हमें देखना पड़ेगा। 6 महीने का बच्चा सब जानते हैं, वो तो माँ का दूध ही पी सकता है, बाहर का दूध पीना शुरू करेगा, थोड़ा बहुत अन्न खा सकता है। मांसो वही पुरुषम 8:6:2:14 में कहा गया। तो इस तरह से मांस शब्द के कितने अर्थ हैं, जब ये जान जाएंगे फिर हमें अपना अर्थ लगाना पड़ेगा कि इस यहाँ पर इस प्रसंग में कौन सा अर्थ ठीक रहेगा। तो इस तरह से एक नई रिसर्च सामने आएगी। अदरवाइज तो हम विदेशी साहित्य को पढ़ते पढ़ते, विदेशी साहित्य में बहुत काम की बातें हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम परंपरागत लोग ही समझ सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उदाहरण ये है कि जब स्ना धातु है, हमारे स्ना धातु, ओल्डनबर्ग ने जब अनुवाद किया गृह सूत्रों का, तो आप देखिएगा एक प्रसंग आता है वहां पर। प्रसंग ये आता है, मैं पारस्कर की बात कर रहा हूं, वेदम समाप्य स्नायात, ओल्डनबर्ग ने बात रखी, व्याख्या की, पारस्कर 2:6:2। फिर मैं बोल रहा हूं, वेदम समाप्य स्नायात, वेद को समाप्त करके और अर्थ दिया गया जो विद्यार्थी वो स्नान करे। When he had finished the Vedas, he should take the bath। ये ओल्डनबर्ग ने अर्थ किया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि स्ना धातु का क्या अर्थ है। लेकिन आप और हम जानते हैं, क्या स्ना धातु का केवल स्नान करना है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल परंपरा से समझ में आएंगी। परंपरा से कैसे समझ में आएंगी? अच्छा, हमारे यहाँ हो सकता है, आपके बंगाल में भी जो ग्रेजुएट हो जाता है उसको हिंदी में क्या वो कहते हैं, आप उस डिग्री को क्या मानते हैं? स्नातक। ये ग्रेजुएट जो हो गया, उस ग्रेजुएट को स्नातक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारा वैदिक प्रभाव है। स्ना कहते हैं स्नान करना, और स्नान करने का अर्थ होता है विद्या में स्नान करना। जो गुरुओं के पास, अपने आचार्य के पास बैठ करके विद्या में स्नान कर लेता है, उस स्नान करने वाले को बोलते हैं स्नातक। और उस स्नातक एक सामान्य विद्याओं में जो स्नान करता है, जिसमें बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्नातक। और जो विशेष विद्या में स्नान करता है उसे बोलते हैं परास्नातक या स्नातकोत्तर। दरअसल यहां पर भी वैदिक आचार्य कहना यह चाह रहे थे, वेदम समाप्य स्नायात, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्नातक तब बनेगा जब वो वेदों का अध्ययन करेगा। वेद का अध्ययन किए बिना स्नातक बनना संभव नहीं है। इसलिए वेद, क्योंकि हमारे धर्म का आदि मूल माना, मानवीय धर्म का मूल माना, ये सार्वभौमिक धर्म का मूल माना, इसलिए जब तक वेद में हमारी गति नहीं होगी, वेद की मूल अवधारणाओं को नहीं समझते, तब तक विद्यावान होने का बहुत लाभ हमें मिलेगा नहीं। इसलिए ग्रंथकारों का यहाँ तात्पर्य ये था, और इसका मैं प्रसंग बता रहा हूं उसी पारस्कर गृह सूत्र में। त्रय स्नातका भवन्ति, स्नातक 3 प्रकार के होते हैं। विद्या स्नातक है, एक तो विद्या स्नातक जो विद्या में स्नान कर चुका है, और दूसरा होता है व्रत स्नातक है, जो किसी संकल्प लेकर के उसमें
संकल्प को पूरा करता है उसे व्रत स्नातक बोलते हैं। और तीसरा वह व्यक्ति होता है जो विद्या और व्रत दोनों में स्नान कर लेता है, विद्या व्रत स्नातक इति। इसलिए पूरे भारतीय वाङ्मय की जो अभिनव व्याख्या है, उस अभिनव व्याख्या के लिए हमारे पास बहुत संभावना है अनुसंधान की। आधुनिक दृष्टि से उनमें व्याख्या करें तो पता लगेगा कि किस प्रकार से ये साहित्य हमारे लिए उपयोगी है। महाभारत में मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, योग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? हम सोचते हैं कि जो स्वस्थ रहने के लिए योग, पर सब जगह योग का ये अर्थ तो नहीं होता। यदि हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो आयुर्वेद में तो योग का अर्थ दूसरा है। तो प्रत्येक प्रसंग के अनुसार, विवरण के अनुसार हमें इन अर्थ पर यदि करेंगे, ध्यान देंगे, तो अर्थ बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए जितना ब्राह्मण साहित्य उपयोगी है, उतना ही निरुक्त, और निरुक्त के साथ उतना ही उपयोगी है हमारे पास निघंटु। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे शायद समय होने को हो गया होगा, क्योंकि ये विषय इतना विस्तृत है। आपने इंद्र सूक्त पढ़ा होगा। इंद्र सूक्त भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये इंद्र सूक्त लगा हुआ है, पाठ्यक्रम में है। और वहां एक मंत्र हम पढ़ते हैं, उस मंत्र का केवल अंश प्रस्तुत कर रहा हूं। ये ऋग्वेद के पहले मंत्र का दूसरे सूक्त का 12वां, दूसरा मंडल 12वां सूक्त और दूसरा ही मंत्र है। यह व्यथमानाम पृथ्वीम अदृंघत। इंद्र देवता कैसा है? जिसने हिलती हुई पृथ्वी को दृढ़ कर दिया। ये हमारे आचार्यों ने अर्थ किया और अपनी जगह बिल्कुल ठीक है वो अर्थ। यह व्यथमानाम पृथ्वीम अदृंघत, जिन्होंने हिलती डुलती हुई पृथ्वी को भी स्थापित कर दिया, गतिशील पृथ्वी को आकाश में स्थापित कर दिया बिना आधार के। अब ये, लेकिन आप जानते हैं यहां व्यथमानाम का क्या अर्थ है? उसको स्थापित करने वाला कौन है? इसको स्थापित करने के लिए अगला ही प्रसंग देखिएगा। सहस्त्र सिंहो वृषभो यह समुद्रात उदश्चरत। सहस्त्र सिंह ने कहां पर स्थापित कर दिया? किसने स्थापित किया? सहस्त्र सिंह ने। सहस्त्र सिंह कौन? वृषभ, एक ऐसा बैल जिसके हजारों सिंह थे, उसने इस पृथ्वी को अपने सिंगों पर स्थापित कर दिया। अब यह सामान्य अर्थ निकला। इस सामान्य अर्थ को विशेष करने के लिए हमारे पास एकमात्र जो शरण है वो ब्राह्मण साहित्य है। और ब्राह्मण साहित्यकारों ने कहा कि वृषभ कौन? वृषभ कहते सूर्य को। और सूर्य कैसा? सहस्त्र सिंह है, जो हजारों अनंत किरणों वाला। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पृथ्वी को स्थापित करने का विज्ञान चल रहा था कि किस प्रकार से सूर्य और हमारे दूसरे ग्रह एक दूसरे के सामर्थ्य से आकाश में अपने गतिशील हैं और स्थापित हैं। उस विज्ञान की बात हो रही थी। लेकिन साधारण व्यक्ति ने इसका अर्थ क्या कर दिया कि धरती ऐसे घूमती होगी और इसको कोई पृथ्वी के नीचे कोई बैल खड़ा है और बैल के ऊपर, बैल के सींगों के ऊपर ये धरती टिकी हुई है। असल में बैल के ये कौन है? ये बैल सूर्य है, ये वृषभ सूर्य है। इस तरह से हम अभिनव व्याख्या कर सकते हैं वेद मंत्रों की, इन प्रसंगों की। और जब इनकी अभिनव व्याख्या होगी तो आप देखिएगा सब लोग कहेंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे कि वेद की किस प्रकार की काव्य शैली। हम सब जानते हैं
बढ़िया कविता कौन सी होती है? बढ़िया काव्य वो होता है जिसमें ध्वनि बढ़िया होती है, जिसमें व्यंग्यार्थ बढ़िया होता है। अभिधेयार्थ जिसमें ज्यादा अच्छा होता है उसको आचार्यों ने सामान्य कोटि का काव्य माना, और वेद तो उच्चतम कोटि का काव्य है। एक और मंत्र कर देखिएगा, यह पर्वतान यह प्रकुपितान अरमनाथ। जिस इंद्र देवता ने, वही मंत्र है, जिस इंद्र ने प्रकुपितान पर्वतान अरमनाथ, क्रुद्ध हुए पर्वतों को भी स्थिर कर दिया। अब प्रश्न ये होता है, ये पर्वत क्यों गुस्से में थे? उनको क्रोध किस बात का आ रहा था? और ये इंद्र कौन है? और जब इसकी अलग अलग व्याख्याएं पढ़ेंगे, जब हम पुराने साहित्य में जाएंगे, जब इंद्र की डिक्शनरी देखेंगे, इंद्र के कितने अर्थ हैं, तो तब हमें पता चलेगा कि पर्वतान का अर्थ यहां पर्वत नहीं है। क्यों पर्वत नहीं है? क्योंकि पर्वत शब्द का अर्थ हमको निघंटू में जाना पड़ेगा, और निघंटू में यहां पर्वत का अर्थ है जिसमें पर्व है। पर्व मतलब अकेले अलग अलग लेवल बने हुए हैं। और जा करके कहा, वो पर्व जानते किसमें होते हैं? सबसे ज्यादा पर्व होते बादलों में, मेघ में, है ना ये विचित्र अर्थ। जब हम संस्कृत डिक्शनरी, साधारण डिक्शनरी देखेंगे तो क्या अर्थ बनेगा? उस इंद्र देवता ने क्रुद्ध हुए पर्वतों को स्थिर कर दिया। लेकिन जब हम निघंटू को देखेंगे तो हमें पता चलेगा यह पर्वतान का अर्थ होता है मेघ, और अरमनाथ का अर्थ होता है स्थापित करना, और यह इंद्र का अर्थ है विद्युत और सूर्य। जो विद्युत और सूर्य मिलकर के, यहां असल में मेघ विद्या का प्रसंग है। और जब आप इंद्र सूक्त पढ़ते हैं, यदि आपके सामने ये पिक्चर क्लियर है कि इस मंत्र में इंद्र का अर्थ ईश्वर, इस मंत्र में इंद्र का अर्थ सूर्य, इस मंत्र में इंद्र का अर्थ विद्युत है, इस इंद्र का अर्थ विद्वान है, इस मंत्र में इंद्र का अर्थ राजा है, तो आप देखें सारे मंत्रों का एकदम ऐसा बौद्धिक बुद्धिगम्य अर्थ आपके सामने आ जाएगा। और आपको आश्चर्य होगा कि इतनी बढ़िया बढ़िया बातें वैदिक साहित्य में। तो हम नए अनुसंधानकर्ता इस प्रकार के साहित्य को हम अपने सामने नए अध्येताओं को दे सकते हैं। मैंने एक मंत्र पर काम करना शुरू किया जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तो मुझे, और मैंने खाली उसके अंदर ये बताया कि इसके अंदर कुल 12 या 13 मंत्र कितने थे मुझे स्मरण नहीं हो रहा। इस मंत्र में इंद्र का अर्थ ये माने, इसमें यह अर्थ, इसमें यह अर्थ, तो विचित्र अर्थ सामने आ गए। और ऐसे अर्थ सामने आए जो बिल्कुल 100%, 100% बुद्धिगम्य अर्थ है। वो कहीं पर सूर्य की चर्चा हो रही है, जब इंद्र और वृत्र के युद्ध की बात होती है, जब उर्वशी की बात होती है, और वशिष्ठ की बात होती है, यदि वशिष्ठ और उर्वशी का जो आख्यान है, आप साधारण अर्थ करेंगे तो आपको लगेगा ये आख्यान बड़ा अश्लील है। लेकिन जब इसका ब्राह्मण साहित्य को लेकर के अर्थ करेंगे तो आपको पता लगेगा उर्वशी का अर्थ यहाँ पर विद्युत है, और वशिष्ठ की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से अग्नि, मेघ, विद्युत, ये जो एस्ट्रोनॉमी और खगोल विद्या है, ये अर्थ था वहां पर। तो इन अर्थों को जानने के लिए हमारे पास आज भी आप देखेंगे संपूर्ण प्राचीन आरण्यकों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, कल्प साहित्य का और उनकी व्याख्याओं का आज तक भी संपूर्ण रूप से अनुवाद भी नहीं हो पाया है।
हम एक एक ग्रंथ को भी ले लें, एक एक टीका को ले लें, उस टीका के साथ उन आचार्यों के अभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयास करने लग जाएं, तो मुझे लगता है हम वैदिक जगत को बहुत कुछ दे सकते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो मैंने बात की, मैंने यहाँ डीएवी कॉलेज की जो लाहौर में बहुत बड़ा साहित्य था हमारे पास, अनंत ग्रंथ वहां पर हमें मिले, वो यहाँ सुरक्षित है। होशियारपुर की मैंने चर्चा की, और आपके तो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी है ही, क्योंकि मैंने भी वहां देखी थी, बड़ा साहित्य वहां पर है। एक एक ग्रंथ को लेकर के, एक एक मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के हम ये काम करना शुरू करें तो काफी संभावनाएं हो जाएंगी। लेकिन हमें अभिनव हम ये दे सकते हैं कि नई व्याख्याओं की शरण में जाना पड़ेगा। हम आचार्यों को श्रद्धा पूर्वक याद करें। मेरा यह मानना है, शास्त्र के लिए अश्रद्धा बड़ी घातक है और अति श्रद्धा भी घातक है। इसलिए बैलेंस में रह करके, क्योंकि श्रद्धा तब पैदा होगी जब हम उस आचार्य के साथ न्याय करेंगे, उससे बाद का पाठक को दिशा मिलती है। और जो आधुनिकतम भाष्यकार हैं, हमें उनके साहित्य को भी देखना चाहिए। आपको मैं केवल संकेत कर देता हूं, वैदिक साहित्य में अप शब्द आता है, अप, और अप का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे पानी, जल, क्योंकि आप है बहुवचनांत है। ये यजुर्वेद के अंदर बहुत सारे अप देवताक मंत्र हैं जिनका देवता अप है। मैं भाष्य पढ़ रहा था अलग अलग भाष्यकारों को, मुझे एक अद्भुत बात दिखाई दी। अद्भुत बात यह थी, दयानंद सरस्वती ने कुछ मंत्रों का अर्थ अप का अर्थ स्त्री किया, स्त्री। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप का अर्थ स्त्री कैसे हो सकता है। और जब उस साहित्य पर थोड़ा अनुसंधान करना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि आप एक गुणवाची शब्द है। आप को, जल को आप इसलिए बोलते हैं कि आप कहीं पर भी पानी को डालिएगा, आप मिट्टी को डालेंगे, मिट्टी का एक ढेला बन जाएगा वहां पर। आप कहीं पर रिमोट रख दीजिएगा, रिमोट वहीं पर रहेगा। आप अपना मोबाइल रख दीजिएगा, मोबाइल वहीं पर रहेगा। पर आप पानी को कहीं पर डाल दो, पानी फैलेगा। इसलिए आप का अर्थ होता है आपली व्यापने धातु से, जो फैल जाता है। तो जल को आप इसलिए कहा जाता है कि वो व्याप्त हो जाता है, एकदम फैल जाता है, कहीं भी डालेंगे। और परिवार के अंदर जो महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, पत्नी को आप कहा गया, वो भी इसलिए कहा गया वो सारे घर की सम्राज्ञी है। आपको मंत्र याद होगा, सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्रवाम भव, ननांदरी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अतिदेवऋषु। पूरे परिवार के अंदर, चाहे पितृकुल है, चाहे मातृकुल है, चाहे श्वशुर कुल है, जितनी व्याप्ति महिलाओं की होती है, पुरुषों की उतनी व्याप्ति नहीं होती। और जब आगे चल के देखा तो पता लगा, ब्राह्मणकार ने, सरस्वत ब्राह्मण ने कहा, आपो वा स्त्रिय है, आपो वा स्त्रिय है। आपे क्या होते हैं? स्त्रियों को आपे कहते हैं। क्योंकि आपे इसलिए कहते हैं, आपे का स्त्री हो गया। और आप एक और नई बात बता दूं, हो सकता है आपके पास इसकी जानकारी है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। एक बड़ा शब्द हम सुनते आए हैं, अप्सरा। और अप्सरा का अर्थ ये मानते हैं बहुत खूबसूरत कोई स्त्री होगी जो किसी इंद्रलोक में रहती होगी, शायद उसको अप्सरा कहते हैं। पर जब ये प्रसंग पढ़ा हमने यजुर्वेद का, दयानंद सरस्वती का भाष्य देखा, उस भाष्य में उन्होंने कहा कि ये मैं प्रमाण जो दे रहा हूं वह दे रहा हूं
शतपथ ब्राह्मण देखा तब अनेक जो मैल का पर्दा था अपने आप साफ हो गया। अप्सरा शब्द का जानते क्या अर्थ होते हैं? अप्सरा, अब कहते पानी को, पानी का जो सरोवर वो अप्सरा है, और अब का अर्थ हो गया स्त्री, स्त्री का सरोवर, स्त्री का अर्थ स्त्रीत्व, स्त्रीत्व का अर्थ क्या? स्त्रीत्व का अर्थ मतलब स्त्री के गुणों का सरोवर, मतलब शालीनता, खूबसूरती, घर के अंदर सहयोगिता, मृदुभाषिता, ये जितने घर को संभालने का जो जज्बा जिन महिलाओं में होता है, उन महिलाओं के लिए वैदिक साहित्य में शब्द मिलता है अप्सरा। इस तरह से जब अर्थ करेंगे तो हमें पता लगेगा, अरे अब तक तो हम अप्सरा का अर्थ समझ रहे थे कोई आकाश में होता होगा, लेकिन यजुर्वेद पढ़ करके और शतपथ ब्राह्मण पढ़ के पता लगा अप्सरा हमारे घर के अंदर, हमारे परिवारों में, हमारे राष्ट्र में, जो भी परिवार को आगे बढ़ाती हैं, जो इस राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं, वो इंद्रलोक की, क्योंकि वो परिवार इंद्र बन जाता है, इंद्रलोक बन जाता है, और इंद्र कहते ऐश्वर्य को, वो परिवार ऐश्वर्यवान बन जाता है। जब ये अर्थ करेंगे तो भौतिक अर्थ में भी इस सारे शब्दों की, सारे देवीवाचक शब्दों की संगति लग जाएगी। तो कुछ संदर्भ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे से क्या अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि मैं पहली बार आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं और मैंने कुछ मोटी मोटी जानकारी आपको दी है, और मोटी जानकारी से बात की दी है। लगभग 20,000 मंत्र, उन 20,000 मंत्रों के अंदर यदि हम पुराने साहित्य को लेकर के जब उनका अर्थ करेंगे तो तब भी एक अभिनव अर्थ हमारे सामने आएगा, ऐसा अभिनव अर्थ जो किसी राष्ट्र की उन्नति में, परिवार की उन्नति में, वैयक्तिक उन्नति में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने आपके सामने कुछ चर्चाएं की हैं। आप जिनको भी अवसर मिले इस पुराने साहित्य की टीकाओं को देखें, उन टीकाओं के तात्पर्य को देखें। देखो, एक मैं आपको बात बताऊं, हमें संदेह क्यों होता है, हम झगड़ते क्यों हैं? मनुस्मृति और दूसरी स्मृति साहित्य में, क्योंकि प्रसंग मैं बार बार सुनाता हूं जब भी कहीं मेरा व्याख्यान होता है, मैं इसलिए सुनाता हूं कि इससे हमें दिशा मिलती है। एक अनुसंधाता मेरे निर्देशन में कार्य कर रहा था, विषय यह है, प्रसंग ये आया कि ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप, और हमारे कुछ व्याख्याकारों ने अर्थ कर दिया कि ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप। यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन बाद में अर्थ ये होने लगा, जब ये बात कास्टिज्म के ऊपर आ गई तो लोगों ने कहा कि अकेले ब्राह्मण की हत्या पाप कैसे, अमुक जाति का है, अमुक कास्ट का है, उसकी हत्या बड़ा पाप क्यों नहीं? आपके वैदिक लोग तो ये जाति पाति मानते हैं। जब एक प्रश्न मेरे सामने आया, विद्यार्थी ने पूछा, तो मैंने उसको यही समाधान दिया कि आप यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ जाने, ब्राह्मण का अर्थ जाने, और ब्राह्मण का अर्थ वैदिक वाङ्मय में होता है विद्या, ज्ञान। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म हत्या, अर्थात जो ज्ञान की हत्या करता है, जो विद्याओं की हत्या करता है, किसी राष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा पाप वही होता है। किसी कोई धन को चुरा के ले जाए फिर भी संभल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कुलपति आ जाए, कोई ऐसा प्रिंसिपल आ जाए, कोई ऐसा हेड टीचर आ जाए जो हमारे विश्वविद्यालय को या किसी कॉलेज को, किसी स्कूल के सिस्टम को ही तबाह कर दे, वो सबसे बड़ा विनाश है राष्ट्र के लिए। इसलिए स्मृतिकारों ने कहा था ब्रह्म हत्या महत् पापम, ब्रह्म की हत्या सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जब हम इसका सही अर्थ नहीं समझे, हमने इसका अर्थ संकुचित कर दिया। हमने कहा कि लो, ये तो कास्टिज्म की बात हो रही है और ये खाली ब्राह्मणों की बात हो रही है, तो ब्राह्मणों की हत्या को पाप कहा गया, जबकि वहां पर अर्थ क्या था? ब्रह्म की हत्या। आज भी हमारे पास, हमें जो सबसे बड़ा अफसोस है, हमें जो सबसे बड़ा दुख है, वो ये नहीं है कि विदेशी आप लोग यहाँ पर आ गए। सबसे बड़ा दुख ये है हमारे साहित्य को उन्होंने जला दिया। ये सबसे बड़ा पाप हुआ।
आज भी मैं क्योंकि पंजाब की भूमि पर बैठा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे कई साथी आकर के बताते हैं कि लाहौर के पुस्तकालयों में, पब्लिक लाइब्रेरी में, वहां आज भी वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। हमारा विभाजन हो गया, चलो बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन उससे बड़ा दुख यह है साहित्य हमारा बहुत सारा आज वहीं रह गया। आज वो साहित्य हमारे पास होता, हम उसका भी अध्ययन करते, इतनी कमाल की बात होती। लाइब्रेरी में वहां भी बहुत सारा हमारा साहित्य है। ये जो साहित्य लूट करके ले गए, सबसे बड़ा पाप ये होता है। इसलिए वैदिक जब चर्चाएं करें, चाहे आप इंद्र की बात करें, चाहे अश्विनों की बात करें, चाहे आप ब्रह्म की बात करें, आप वरुण की बात करें, आप विष्णु की बात करें, आप यम की बात करें, इन शब्दों का सही अर्थ क्या है यदि जान जाएंगे, इतना व्यवहारिक अर्थ सामने आएगा, आप आनंद में झूम उठेंगे। अरे इतना बढ़िया साहित्य के स्वामी हम लोग रहे, हमारे पूर्वजों ने इतना बढ़िया साहित्य दिया। ये बहुत गुंजाइश है संपूर्ण पुराने साहित्य में कार्य करने की। समय क्योंकि 1 मिनट बचा है और मैं जानता हूं आपने बड़े सही समय पे आरंभ किया था। हालांकि मैं पूछना भूल गया कि मुझे कितने मिनट बोलना है, लेकिन आपके साथ बड़ी अच्छी चर्चा हुई और आपको यदि मेरे कारण लाभ हुआ हो तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। मैं आयोजकों का, माननीय अनंत मुखर्जी जी का, अमित डे जी का और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं, आप दोनों को मैं केवल नामना ही जानता हूं। सर्वेषां कृते धन्यवादान व्याहरामि। धन्यवाद है। ओम शांति शांति शांति। স্যার को भी ধন্যবাদ है। আমি এখন স্টুডেন্টদেরকে বলতে চাইছি যারা এতক্ষণ ক্লাসটা শুনলেন, তাদের যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই সরাসরি স্যারের কাছ থেকে আপনাদের সেই সমস্যা বা প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারেন। কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? सर किसी का कोई प्रश्न है तो इसलिए मैं पूछने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आशा करी कारोर कोनो प्रश्न नहीं। शायद सर किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है तो इसलिए मैं हाँ सर, मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरी हिंदी भी इतनी भी ज्यादा अच्छा नहीं है तो फिर भी मैं बोल रही हूँ। सर ने कहा कि 80 देवता का उपासना करना है, तो हम कैसे 80 देवता का उपासना करें, ये थोड़ी अगर सर ने बता देता तो बहुत अच्छा लगता। हमें पता नहीं है कि 80 देवता को देवता के संबंध में भी मुझे कुछ ज्यादा तक पता नहीं। देखिए, अश्विन देवता का अर्थ मैंने बताया ना, दिन और रात, दिवा दिन, रात्रि रात्रि, अर्थात अश्विन देवता कौन है? दिन और रात्रि किसके प्रतीक हैं? दिन और रात्रि प्रतीक हैं समय के। जो समय की उपासना होता है, समय को बर्बाद न करना, इस समय की उपासना ही अश्विनी देवताओं की उपासना, और उसका फल मिलेगा। तो हमें समय का सदुपयोग करना, भले ही हमारा कितना समय व्यतीत हो गया। अब देखिएगा, जब हम व्याकरण दर्शन पढ़ते हैं तो ये कहा गया काल किसे कहते हैं, काल के प्रतीक क्या है, तो वहां कहा गया कि जो क्रिया है, क्रिया को ही काल कहते हैं। क्रिया किसकी क्रिया? मुख्य तौर पे कहा गया कि सूर्य की गति क्रिया, क्योंकि सूर्य की जो गति क्रिया है, गति क्रिया मतलब जो हमें उसकी गति दिखाई देती है, हमें तात्विक दृष्टि से नहीं, पर हमें दिखाई देती है, हमें लगता है कि अब सूर्य उदय हो गया। जब सूर्य उदय हो गया हम उसको दिन मानते हैं, जबकि सूर्य तो वहीं रहता है। जब अमेरिका में चला गया तो हमें लगता रात्रि हो गई। इसलिए सूर्य जो है वो काल का प्रतीक है, दिन रात का प्रतीक है, और दिन रात का अर्थ होता है अश्विन देवता। जब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे और भी बहुत सारे अर्थ हैं, पर हम यदि हमें काल की उपासना करें तो समझिएगा हम समय की उपासना कर रहे हैं, अश्विनी देवताओं की उपासना कर रहे हैं।
और अश्विनी देवताओं की उपासना जो करता है उसको अभीप्सित फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक उपयोगी यदि कुछ है, हम भी बचपन में ऐसा मानते थे कि चरित्र सबसे ज्यादा उपयोगी है। मैं उस घटना को नहीं भूलता, अपने बचपन की। एक आचार्य ने मुझे बताया कि नहीं, सबसे उपयोगी होता है समय, क्योंकि जब भी आप जाग जाएं तो जिस दिन से आपने समय का उपयोग करना शुरू कर दीजिएगा, वही समझिएगा कि वही अश्विनी देवताओं की उपासना है और अधिक कुछ नहीं। कोई पूजा लेकर के दीपक जला करने की बात नहीं है यहाँ पर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কি? आप लोगों ने बिल्कुल समय की उपासना की, क्योंकि मैं भी 2-4 मिनट पहले आ गया और जब मैंने ज्वाइन किया आपने सब लोग उपस्थित थे, बिल्कुल समय पे आरंभ किया अमित देव जी ने, और 1 मिनट मैंने भी पहले समापन कोशिश किया, प्रयास किया। आपने कुछ देखा होगा कुछ कार्यक्रमों में कोई 1 घंटा लेट, आधा घंटा विलंब से और 2-2 घंटे विलंब तक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये समय का जो दुरुपयोग है, मैं वैदिक भाषा में कहूंगा तो ये अश्विनी देवताओं का निरादर है। हम अपने जीवन में प्रत्येक कार्य समय पे करने लग जाएं, ये समय पर कार्य करना ही अश्विनी देवताओं की उपासना है। यही मेरा तात्पर्य था। थैंक यू স্যার। थैंक यू सर। স্যার আমি একটা প্রশ্ন করব। হ্যাঁ করুন। হ্যাঁ, আমি বাংলাই বলছি, হিন্দিটা ততটা ভালো করে বলতে পারি না, তাই বাংলাই বলছি। স্যার আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, স্যার যেরকম আপ বলতে জল বললেন, তো ওই জলটাকে শুধু যদি আমরা ধরি আপ বলতে, যেটাকে বিস্তার করা বোঝাচ্ছে, তাহলে তো এখানটায় অতিব্যাপ্তি হয়ে যাচ্ছে না, যেরকমটা দুগ্ধ কিংবা আমরা যেরকমটা অন্য এরকম তরল পদার্থটাও তো ছড়িয়ে যাচ্ছে। अमित जी हाँ, मैं वो बोलना चाहता है कि आप इस शब्द से, जैसा मैं हम लोग जल के मतलब बोल रहा हूँ, तो ऐसा इसमें अतिव्याप्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि तरल वस्तु मात्र आप शब्द से बोल सकता है, ऐसा कोई इसका प्रश्न है। मैं हालांकि पूरा अभिप्राय समझ नहीं पाया, लेकिन जो कुछ मैं अवगत कर पाए वो ये कि देखिए, आप है शब्द, यदि आप एक कॉपी पेन लेकर के एक लिस्ट तैयार कर लें कि वैदिक साहित्य में आप है शब्द के कितने अर्थ हैं, जल अर्थ भी है, आप है का अर्थ स्त्री अर्थ भी है, आप है का अर्थ ईश्वर अर्थ भी है, आप है का अर्थ सूर्य की किरणें अर्थ भी है, जितने बहुत सारे वहां पर अर्थ दिए गए हैं, उन सारे अर्थों की हम यदि लिस्ट बना लें और जब हम उन मंत्रों को पढ़ें और उस मंत्र को पढ़ते समय हम ये देखें कि यहाँ पर आपय का अर्थ क्या होगा, तो आप देखिएगा वो मंत्र आपको चमत्कृत कर देगा। आपको लगेगा अरे अभी तक तो हम यहाँ आपय का अर्थ यह मान रहे थे, पर आपय के तो 10 अर्थ हैं, यहाँ पर 10 अर्थों में यहाँ ये अर्थ संगत हो रहा है, तो मंत्र का सही लाभ हमें हो पाएगा। इस दृष्टि से मैंने केवल संकेत रूप में कहा था कि आपय का अर्थ वैदिक भाषा में स्त्री भी है, योषित महिला अर्थ भी है। আচ্ছা, আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? আশা করছি আর কারোর কোনো প্রশ্ন নেই। আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, একেবারে অন্তিম লগ্নে। আমি একদম শেষ প্রান্তে এসে পুনরায় অনন্ত মহাশয়কে অনুরোধ করব ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে, শান্তি পাঠের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য। অনন্ত। सभी को नमस्कार और मतलब मैं शुभरात्रि ज्ञापित कर रहा हूँ। आप लोग आज जुड़े हुए थे इस प्रोग्राम में और विशेष रूप से मैं सर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सच में ही आज सर जो सत्र किए हैं और सत्र कंप्लीट होने के बाद मतलब
समय जो है बहुत सुंदर तरीके से हम लोग आज कर पाए हैं। मतलब इसका भी एक मतलब मूल्य है, सर से जान पाए कि अश्विनी देव जो है वे समय के अधिपति होते हैं, और हम लोग समय को मान के चले तो उन सबसे आशीर्वाद मिलेगा हम सबको। ये भी एक मर्यादा है सत्रों के। तो ये एक नई चीज थी हम सबके लिए, शायद ये एक नई चीज है। और जो भी जिन विषयों को लेकर सर आज उपस्थापित किए थे, अपने वचनों को रखे हैं, अपने वाणियों को रखे हैं, सच में इनसे वैदिक साहित्यों के ऊपर, वेद के और भी वेद से अनुसंगत जितने सारे साहित्य है, सभी साहित्यों के ऊपर हम सब नए नए शोध के किरण देख सकते हैं। जैसे कि सर बोले हैं, हम याद कर सकते हैं कि मांस जो होता है उसको लेके कितने सारे अर्थ हो सकता है, और उसी वैसे ही मांस के कितने कितने प्रकार है, कौन से मांस को कौन से मतलब शरीर के ऊर्जावर्धक के लिए या क्या क्या, मतलब कौन से जगह में हम लोग उन सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों में, और भी अप्सरा शब्द का जो अर्थ निकल के आया है, आप शब्द का जो अर्थ निकल के आए हैं, तो इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग शोध कर सकते हैं। एक सामूहिक रूपरेखा हम सबको मिला है। तो इसलिए मैं फिर से हमारे साथ आज उपस्थित प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी, चेयरपर्सन पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, मैं उनको शतशः नमन करता हूँ, कोटिशः नमन करता हूँ। आज हम सभी नए नए शोधकर्ता और शोधकर्त्रियों को समय देने के लिए, अपने व्यस्त समय से समय देने के लिए, तो बार बार उनसे मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, ज्ञापित करता हूँ। और इस पूरे सत्र को संचालन करने के लिए अमित कुमार दे जी, उनको भी मैं बहुत मैं उनको भी प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। मेरे तरफ से ढेर सारा श्रद्धा, आदर और प्यार उनको। और जितने सारे यहाँ पे उपस्थित आज हम सबके साथ उपस्थित हुए थे, जितने सारे दर्शक वृंद जितने सारे सब उपस्थित हुए हैं और इतने समय तक जुड़े रहने के कारण मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। VSSAI सर्च टू रिसर्च की तरफ से आप लोग ऐसे ही VSSAI सर्च टू रिसर्च के साथ जुड़े रहें, उन्मुक्त होकर शास्त्र की चर्चा में लगे रहें, और नए नए शोध किन किन क्षेत्रों में किन किन विषयों के साथ हम लोग कर सकते हैं, इन सभी विषयों के ऊपर आप लोग भी अपना ज्ञान जो है वो वर्धन करते रहे। तो इसी के साथ मैं शांति पाठ के माध्यम से आज का जो सत्र है ये समाप्त करना चाहूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। सर प्रणाम। प्रणाम सर, बहुत शुक्रिया सर, प्रणाम।